رہیں گے. پہلا ہی سوال جو کہ مجھے امید بھی تھی, کوئی سرپرائز بھی نہیں تھی, میں نے شاید سکر والے کوئی سرپرائز دیں, کوئی نئی بات کریں, لیکن بہت ضروری بات ہے اور اہم بات ہے. سوال یہ تھا, اگر کسی نے سنا نہیں, سوال یہ تھا کہ جی پنجاب نے 218 ارب روپے کا ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے اور آپ وفاق کے ساتھ ہیں, تو آپ مطمئن کیوں نہیں کر سکے لوگوں کو. میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ ہم ایک بڑی وجہ مطمئن نہ کرنے کی یہ بھی ہے کہ اس کے خلاف, ہمارے خلاف, کنالز کے خلاف نہیں, کنالز کے خلاف تو ہم سب ہیں, کھڑے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی کے خلاف جو پروپیگنڈا اس کنال کے ایشو کو لے کے کیا جا رہا ہے, شاید ہم اس کا پراپر مقابلہ یا اس کا جواب نہیں دے سکے. اور میں میڈیا سے بھی تھوڑی سی شکایت بھی کروں گا, اس لیے کہ میڈیا کے اندر بھی کبھی کبھی ایسی خبریں آ جاتی ہیں, لوگ میڈیا کو سمجھتے ہیں کہ, اور درست بھی ہے, ایک جو رسپانسبل میڈیا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میری ایک خبر کا اثر کیا ہو سکتا ہے. اگر اس میڈیا پہ ایسی خبریں آئیں, کل بھی میں مزار پہ تھا شہید ذوالفقار علی بھٹو کی, تو ایک جرنلسٹ نے کہا کہ 40% کام ہو گیا, اور جہاں تک مجھے پتا ہے, بلکہ مجھے بڑی وثوق سے پتا ہے کہ 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا کنالز پہ. میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں, شاید آپ کے اور سوالات اس بارے میں ہوں. یہ منصوبہ بالکل درست 218 روپے کا پنجاب حکومت نے کنسیو کیا ہے. اب کسی حکومت کو کوئی پروجیکٹ بنانے کے لیے تو میں ان کی سوچ پہ پابندی نہیں لگا سکتا, لیکن اس ملک کا آئین کہتا ہے کہ پانی کا کوئی بھی منصوبہ جب تک سب صوبے اس پہ متفق نہ ہو یا ان صوبوں کے اعتراض کو سن کے اور ان کا حل نہ نکالا جائے, وہ نہیں بن سکتے. تو یہ جب آئین آرٹیکل 155 ہے, یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں جاتے ہیں, تو یہ جب منصوبہ, ویسے تو شاید اس کو 2018 میں پہلے اس کی فیزیبلٹی وغیرہ بنائی تھی, وہ پنجاب حکومت بنا رہی ہوگی, لیکن 2024 کے جنوری میں 17 جنوری کو ارسا کے اندر, انڈس ریور سسٹم اتھارٹی ہے, اس پہ انہوں نے ایک درخواست دی. درخواست تو پہلے دی تھی, 18 کو اس کو سنا گیا کہ جی ہمیں پانی کی اویلیبلٹی کا سرٹیفکیٹ دیں کہ یہ کنال ہم بنا سکتے ہیں, اس لیے کہ وہ پری ریکوزٹ ہے, وہ ہونا پڑتا ہے. ارسا نے ایک غلط فیصلہ, جس کی ٹیکنیکلی کوئی اٹ ہیز نو لیگس ٹو اسٹینڈ آن, اس کی میں وجہ بتاتا ہوں. انہوں نے کہا کیا, اور یہ آپ لوگ سارے جرنلسٹ ہیں, سمجھدار ہیں, اور اتنی کوئی ٹیکنیکل زیادہ بڑی مشکل ٹیکنیکل چیز بھی نہیں. انہوں نے کہا, یہ نہیں دیکھا کہ یہ پانی کہاں سے آئے گا, جو ابھی کہہ رہے ہیں نا, سوال ہو رہا ہے, پنجاب والے بھی سوال کر رہے ہیں کہ کس نہر کا پانی کاٹ کے آپ دیں گے. یہ انہوں نے نہیں کہا کہ ہم کس نہر کا پانی کاٹ کے اس کو دیں گے. ارسا پہ جب درخواست دے گئے, انہوں نے کہا کہ جی 1976 سے لے کے تو 2022 تک ایوریج پہ اوسطاً 27 ملین ایکڑ فٹ پانی جاتا ہے سمندر میں, اور اس وقت جو جانا چاہیے ان کے حساب سے وہ 8.6 MF ہے, اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا 11 MF پانی شارٹ ہے کنال جو اس وقت واٹر اکارڈ ہے اس کی ڈسٹریبیوشن میں. تو 11 اور 8.6 کو جمع کیا, 19.6 کیا, اور کہا 27 میں سے 19.6 نکالو, اور جو 8 کے قریب یا 7.5 کے قریب بچتا ہے, یہ وافر پانی موجود ہے, اور اس میں 37% پنجاب کا حصہ ہے, تو یہ تو ویل ود ان اٹس رائٹ ہے, اور یہ بنا لے. یہ ان کا تھا. اب میں ہیں بڑے احترام کے ساتھ ہیں تو انجینئر, میں بھی انجینئر ہوں, اس میں اس کو آپ اگر مجھے بتا دیں کہ 3-4 منٹ میں اس کو ختم کر دیتا ہوں, اس ارسا کے سرٹیفکیٹ کو, اسی لیے CCI نہیں بلا رہے. سب سے پہلے تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, اب ایک کام کرتے ہیں, یہ کنال تصور کریں آپ سب, اللہ نہ کرے, لیکن سوچ تو ہے نا, جیسے سوچ ان کی بھی ہے کہ یہ کنال 1999 میں بن جاتی, یعنی 25 سال پہلے یہ کنال بن گیا ہوتا. میں نے کل سائیں ناصر شاہ صاحب کو بھی دکھایا تھا, یہ ریکارڈ ہمارے پاس ہے, آپ چاہیں گے میں آپ کو دوں گا, ابھی میری گاڑی میں سارے وہ آئی پیڈ پہ پڑے ہوتے ہیں یہ ریکارڈ.
1999 से 2024 यानी 25 साल का मैंने रिकॉर्ड देखा। 25 साल में सिर्फ 4 साल ऐसे हैं जब पानी 19.6 MF जो कहते रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा गया है पानी, सिर्फ 4 साल। बाकी सालों में तो कहीं 0.5 भी गया है, 1-2। तो मतलब ये कनाल अगर आप 1999 में इरसा के कहने पे ये गलत फैसला हो जाता उस वक्त, तो इसके लिए 25 में से 4 साल पानी होता, 21 साल सूखा रहता। तो कोई प्रोजेक्ट बन सकता है 21 साल सूखा रहने पे? नहीं बन सकता। फिर एक और, ये तो मैंने पुराना रिकॉर्ड देख के और एक एक साल को देख के हमने प्रूव कर दिया कि नहीं बन सकता, यानी सर्टिफिकेट गलत है। सर्टिफिकेट गलत है तो इसकी जिन बैसाखियों पे ये प्रोजेक्ट खड़ा है वो बैसाखी ही खत्म हो जाती है, गिर पड़ती है। एक और भी आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल जो मैं हमेशा बताता हूँ। मेरा तकरीबन 6 फुट कद है, 6 फुट से 1 इंच ज़्यादा, और तैरना मुझे आता है, लेकिन करें कि मुझे तैरना ना आता हो और मैं आपके कहने पे वो मुझे कहें यार ये जो सामने नहर जा रही है ना, इसमें औसतन 5 फुट पानी है, 5 फुट की डेप्थ है। मैं कहूँगा यार 5 फुट औसतन डेप्थ है, तैरना आए या ना आए मैं गुजर जाऊंगा। वो पता ये चलता है कि उस किनारों पे 1 फुट है और बीच में वो 15 फुट है, तो मैं डूबूंगा ही डूबूंगा। तो ये किसी के गलत कहने पे इरसा पूरे मुल्क को डुबो रहा है। ये एवरेजेस का मैंने आपको बताया। तीसरा इसका प्रूफ, कहते हैं कि 27.5 यानी 27 है जो भी MF पानी हर साल डेल्टा में जाता है। हम तो कहते हैं सिंध के लोग कि जो अकॉर्ड में भी लिखा है कि कम से कम 10 MF पानी दे दो, तो अगर 10 की जगह पे 27 जा रहा है जो इनका कहना है, तो हमारा डेल्टा तो बड़ा सरसब्ज तो शादाब होता, हम किसी को मसला नहीं होता, सब खुश होते। उधर के लोग क्यों शोर मचा रहे? तो ये 3 चीज़ें मैंने सीधी सी बताई कि जिन बैसाखियों पे ये प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया वो गिर गई। अब हमने क्या किया, मैंने आपको बताया 17 जनवरी को इन्होंने ये पास किया, इरसा ने सर्टिफिकेट दिया। मैं क्रेडिट उस वक्त की केयरटेकर गवर्नमेंट को भी दूंगा। उस वक्त के केयरटेकर वजीर आला ने उसके कुछ दिनों बाद, मुझे मेरा ख्याल है 29 जनवरी है या 30-31 जनवरी, मतलब 15 दिन के अंदर अंदर उन्होंने ख़त लिखा कि ये हमें मंजूर नहीं है, इरसा का सर्टिफिकेट गलत है। इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस के बाद हम आए, मार्च में हमारी हुकूमत बनी। जब ये चीज़ सामने आई, इरिगेशन डिपार्टमेंट ने, इरिगेशन मिनिस्टर ने एक समरी मूव की, और जून के महीने में हमने कानूनी तौर पे, जैसे मैंने आपको बताया कि पानी के लिए ज़रूरी है कि CCI की अप्रूवल हो। अगर किसी को एतराज़ नहीं है तो खैर है, तो हमने वो एतराज़ जून के महीने में CCI में डाल दिया। इसका सब एविडेंस मौजूद है, आप कहेंगे तो अभी भी आपको सारे कागजात दिखा दूंगा। अभी तक जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो सोए हुए थे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने अपना फर्ज निभाते हुए उसको CCI में चैलेंज कर दिया, और पीपल्स पार्टी बाकी जो लोग, जैसे मैंने कहा कि कल मैंने, बल्कि नासिर शाह साहब इत्तेफाक से मेरे साथ खड़े, मैंने परसों इनका एक प्रोग्राम देखा था, ये TV पे आ रहे थे, तो एक जमात है जो पहले वफाक में हुआ करती थी 3.5 साल, जिन्होंने, वो भी आजकल इनके साथ मिली हुई है। वो कनाल, हम समझते हैं कि शायद कनाल के खिलाफ थी। तो एंकर ने उनसे सवाल किया कि आप ये कनाल के मंसूबे के खिलाफ हैं या पीपल्स पार्टी के खिलाफ है? पहले आए बाई शाही किया, फिर वो खड़े हो गए पीपल्स पार्टी के बारे में, कहने फलाना है, ये तो कभी कनाल अप्रूव कर दो। भाई कनाल के खिलाफ नहीं, पानी तो 27 MF जा रहे हैं तो जरूर बनने चाहिए। तो ये इनके चेहरे आपके जरिए मैं कहता हूँ पहचाने। वो लोग जो इस वक्त पीपल्स पार्टी के खिलाफ कर रहे हैं प्रोपेगेंडा, उनको भी जरा देख लें। ये वही लोग हैं जिनको जब मुशर्रफ कालाबाग डैम बना रहा था और जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कम्मू शहीद पे धरना दे रही थी, तो ये कालाबाग डैम की हिमायत में जलसे निकाल रहे थे। मकसद सिर्फ एक है इनका कि पीपल्स पार्टी को किसी तरीके से ख़राब करे। अब मैं, इसलिए कि ये सारे सवाल आएंगे, मैं डिटेल में जो है उसके अलावा भी आपको कोई सवाल होगा तो जवाब दूंगा। एक उठा के ले आते हैं कि जी सदर आसिफ अली जरदारी ने इनकी अप्रूवल दी। आज भी एक और
میں کیا بولوں, ان کی جماعت تو کنال کے خلاف ہمارے ساتھ اسمبلی میں کہتی, وہ کہتے ہیں کہ صدر نے جو سمری سائن کی, میرے بھائی صدر کون سی سمری سائن کرتا ہے, گورنر کون سی سمری سائن کرتا ہے, گورنر صرف یا صدر کون سی سمری سائن کرتے ہیں, کوئی قانون جاتا ہے تو اس کا اپروول وہ بھی اٹ از مور آف اے فارمیلٹی کہ سگنیچر کرنی پڑتی ہے, اور اس میں بھی ٹائم ہوتا ہے, 15 دن میں نہ کی تو ختم, ان کا پاور ختم. کوئی صدر نے سمری سائن نہیں کی. ہاں ایک میٹنگ صدر صاحب کے پاس ہوئی جو 8 جولائی کی میٹنگ کے بارے میں بتاتے ہیں. اس 8 جولائی کی میٹنگ میں انہوں نے پروجیکٹ پیش کیے صدر کے پاس. ہم بھی جاتے ہیں صدر صاحب کے پاس, باقی صوبے بھی جاتے ہیں, وفاق کے لوگ بھی جاتے ہیں. پریزیڈنٹ صاحب کو اریگیشن سے دلچسپی بہت ہے. پریزیڈنٹ صاحب سے میری کئی بار بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جی میرے پاس وہ آئے کہ ہم ایفیشینٹ اریگیشن سسٹم استعمال کریں گے, پانی بچائیں گے. اس میں تو ہم سب, سندھ حکومت تو صدر آصف علی زرداری کے کہنے پہ کنال کی لائننگ کر رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پانی بچے گا تو ہم سادہ زمین آباد کریں گے, اور انہوں نے کنالوں کی بات کی. تو صدر صاحب نے کہا جی اچھی بات ہے, آپ اس پہ ضرور کام کریں. صدر صاحب کے پاس نہ پاور ہے کسی کو روکنے کا کہ کام خبردار کام نہیں کرو, نہ پاور ہے اپروو کرنے کا. لیکن انفارچونیٹلی وہ ایک منٹس نکلے, وہ منٹس ابھی جا کے کچھ دنوں پہلے, مطلب جولائی کے منٹس ہیں, وہ آتے ہیں سامنے اور اس پہ ایک پروپیگنڈا دوبارہ شروع ہو جاتا ہے کہ صدر صاحب نے اپروول دے دی. تو سب سے پہلے تو صدر صاحب اپروول دے ہی نہیں سکتے کسی پروجیکٹ کا, دیتے ہی نہیں ہے. ادھر میئر صاحب میرے ساتھ کھڑے, ارسلان, انہوں نے, نعمان صاحب کھڑے ہمارے ایم این اے, انہوں نے سکھر شہر میں کافی کام کرائے. کتنوں کی صدر صاحب نے اپروول دی آپ کو, مطلب کوئی تو کوئی بات ہو, بس ہاں پروپیگنڈا کرنا ہے, اس میں بہت تیز ہے ماشاءاللہ. تو وہ بات بھی چلیں, غلط منٹس ہوئے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے کہا کہ میں نے ایک بار کہا تھا اس کو بھی توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا تھوڑا, لیکن میں تیار ہوں ہر توڑ مروڑ کی. میں عادی ہو گیا ہوں, بہت سال ہو گئے مجھے میڈیا کی توڑ مروڑ کا, بہت ہی معذرت کے ساتھ کہ جی منٹس غلط ریکارڈ ہے. ہاں اس حد تک غلط ریکارڈ ہوئے, منٹس کے اپروول کا پاور ہی نہیں تھا. جس چیز کا مجھے پاور نہیں ہو, میں چیف منسٹر ہوں, اور میرے پاس کوئی آئے اور میں کہوں ہاں جی بہت اچھا, اور اس پہ لکھ دے کہ جی سی ایم نے اپروو کر دیا, وہ میرے پاس پاور ہی نہیں ہے اس چیز کا, تو غلط ہی ہوئے نا. ایب انیشیو وائڈ جسے انگریزی میں کہتے ہیں. صدر صاحب نے پھر جب یہ بات پروپیگنڈا ان کا اتنا زیادہ بڑھ گیا, صدر صاحب آپ نے دیکھو کہ میڈیا سے بات نہیں کرتے, ان کا کام نہیں ہے, نہ وہ پبلک سٹیٹمنٹس دیتے ہیں. لیکن ان کو ایک اختیار ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر, پارلیمنٹ کا سال شروع ہوتے اس دن اپنی پالیسی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. اس سے بڑھ کے کوئی چیز ہوتی ہے کہ اس پالیسی سٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہا کہ صوبوں میں بڑی مخالفت ہے اس پروجیکٹ کی, اور میں اس پروجیکٹ کی سپورٹ ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان نہیں کر سکتا. یہ انہوں نے نہیں کہا کہ میں اپروو نہیں کرتا, اس لیے وہ غلط بیانی ہے نا, اپروو تو انہوں نے کہا میں اس کی سپورٹ نہیں کر سکتا. تو جو 8 جولائی کا انہوں نے بہت سارا اچھالا, وہ بھی ختم ہو گیا نا. کسی بند کمرے میں نہیں, 4 لوگوں کے سامنے نہیں, پارلیمنٹ میں پورے پاکستان کے نمائندوں کے ساتھ, اور میڈیا پہ پوری دنیا دیکھ رہی تھی. اس پہ انہوں نے کہا کہ میں ان پروجیکٹس کی سپورٹ نہیں کر سکتا. یہ کہانی بھی ختم ہو گئی. پھر تیسری کہانی شروع ہو گئی. میں کہہ رہا ہوں پروپیگنڈا, بس اللہ معاف کرے, کوئی صاحب پہنچ جاتے ہیں, پھر میڈیا والے پہنچ جاتے ہیں کہ جی اتنا کام ہو گیا ہے, فلانا ہو گیا ہے, یہ بن گیا ہے. میں پریشان, میں نے کہا یہ میرے پاس جو رپورٹس ہیں وہ 218 ارب روپے کا پروجیکٹ تو ابھی تک اپروو ہی نہیں ہوا. پہلے تو اپروو ہونا ہے نا, پھر کام شروع ہوگا. نہیں تو نیب تو ہے ہی ہے نا, نیب تو ابھی تک, میں ختم کر لوں, یہ لمبی بات کر رہا ہوں, نیب تو ہے ہی ہے. تو 218 ارب روپے میں پنجاب حکومت نے اس سال 10 لاکھ روپے رکھے, اور یہ سارے انٹرنیٹ پہ ڈاکیومنٹس یا ان کے کاغذات آپ خود سرچ کر سکتے. مجھے حیرت ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے کیوں کرنا پڑا, یہ کیوں نہیں کیا. صرف میں ختم کر لوں یار, میں ابھی نہیں چھوڑوں گا. وہ لمبی ہے, تو میرے پاس تو بہت ٹائم ہے کنالز کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. آپ کے پاس سننے کے لیے ٹائم ہونا چاہیے. سنیں انہوں نے 10 لاکھ رکھے, اور وہ بھی ری اپروپریٹ, وہ سرنڈر کر دیے, ایک پیسہ خرچ نہیں ہوا. اچھا, پھر پریشانی ضرور ہوئی کہ یار یہ جو دکھا رہے ہیں ٹی وی پہ بھی میں نے دیکھا, یہ کچھ بنا ہوا ہے, پتہ نہیں کیا کیا بنا ہوا ہے. ہم نے بھی لوگ بھیجے. کہاں سے بھیجے؟
कनाल ने पानी उठाने सतलज रिवर से, सतलज बराज से, सॉरी, ये सुलेमान की बराज से सतलज पे, उधर पहले भेजे, उधर कुछ भी नहीं। पहले तो पानी कहीं से लेना है ना। फिर अब्बास से आगे जाके जहाँ पे ये प्रोजेक्ट वो बनाना चाह रहे हैं, जहाँ पे ज़मीन ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव को मिली है, वहाँ पे ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव वालों ने क्या किया है कि ट्यूबवेल्स के ज़रिए सब सॉइल वाटर से कुछ 2-4, मुझे नहीं पता कितनी, कुछ 50 से ज़्यादा ट्यूबवेल हैं, ये इसलिए कि हमने गिने थे जाके, उनसे कुछ ज़मीन आबाद की है। उसके साथ साथ वो जो आप देख रहे हैं, एक 400 से 500 फुट का एक कनाल का प्रोफाइल, कनाल वो फाइनल शेप नहीं है कनाल की, वो प्रोफाइल निकाला हुआ है। अब ये क्यों निकाला है? तो मिडिल ऑफ नोवेयर, मतलब आपने सखर बराज से मैंने सेवन पानी ले जाना है, तो मैं सखर बराज से शुरू करूंगा ना, दादू कनाल, मैं जाके अपने गांव के सामने नहर बना दूं और मैं कहूँ पानी उड़ के आएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्यों किया? इसकी भी कोई वजह होगी, मतलब मेरी जो अकल या जहन काम करता है, ये प्रोजेक्ट क्या है कि ये 10 या 12 लाख एकड़ ज़मीन लार्ज चंक्स में कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए देनी है। 5,000 एकड़, 10,000 एकड़, बड़े इन्वेस्टर्स आएँ, कॉर्पोरेट फार्मिंग करें, उनके लिए दिखाने के लिए कि जी ये कैसा पूरा काम करेगा, उन्होंने बनाया। ये कंसीव तो हर एक कर सकता है ना। और फिर मैंने इसकी टेक्नोलॉजी आ गई है, आप लोग खुद सैटेलाइट इमेजरी देख सकते हैं, बल्कि बाकी तो छोड़ें, बाकी तो पैसे दे के थोड़ी सी मिलती है सैटेलाइट। गूगल तो फ्री है ना। गूगल के अंदर लेटेस्ट इमेज उस इलाके का जुलाई 2024 का है। जुलाई 2024 में यही बना हुआ है, वही मशीनें इधर खड़ी हैं। वो जो प्रोफाइलर्स हैं सस्ते से हैं, वो 2 प्रोफाइलर्स जुलाई, जिस दिन जब उन्होंने शायद ये रोड शो किया होगा, उसके अलावा कुछ नहीं। अब मुझे कल वही किसी ने कहा कि जी 40% हो गया उस पर ज़मीन, अब पानी बह रहा है। मैंने कहा पानी पहुंचा कैसे उधर? उड़ के आता है, ये नई टेक्नोलॉजी आ गई है, पता नहीं, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, तो वो मसनूई इंटेलिजेंस कोई ऐसी आ गई है कि पानी सुलेमान की बरात से उड़ के आता है, उस जगह पे पहुंच जाता है। तो ये मैंने कल भी कहा था, बड़ी तसल्ली से कहता हूँ कि कनाल नहीं बन रहे। हाँ, सोच ज़रूर है उनकी, उसमें मैं तो कह रहा हूँ, उस सोच को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत सिंध ने रोका हुआ है। हमें बलूचिस्तान से भी सपोर्ट है, और मैंने मीडिया पे देखा था कि खैबर पख्तूनख्वा ने भी कहा है कि हमें सपोर्ट है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है, हम उस लीडर के हैं फॉलोअर्स जिसने धरना देके, जब वो हुकूमत में नहीं थी, कालाबाग डैम को ख़त्म कराया था। और उसके बाद जब हुकूमत में हम आए तो राजा परवेज़ अशरफ साहब ने लाहौर में वापदा हाउस में ऐलान किया था कि कालाबाग डैम नहीं बनेगा। इस वक्त हम हुकूमत में हैं और हमारी हुकूमत में अच्छी खासी, सिंध वफाक में हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन वफाक की हुकूमत पीपल्स पार्टी की बदौलत खड़ी है। और वो उन्हें पता है कि हम किसी सूरत में इस कनाल की सपोर्ट नहीं कर सकते। सदर आसिफ अली जरदारी ने कह दिया, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज भी ज़रूर कुछ कहेंगे। 27 दिसंबर की तकरीर उठा लें, जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के दिन भी उन्होंने ये बात कही थी। तो ये सारी बातें क्लियर हो कि हाँ, एक चीज़ जहाँ हम फेल हो गए, मैं आपको बता रहा हूँ, वो इस प्रोपेगेंडा को फेस करने। उसमें मैं आपसे कहूँगा, मैंने पहले भी कहा है कि भाई हकीकत पे मबनी बात करो। अच्छी बात होती है, आप अपनी सेल बढ़ाना चाहते हो, व्यूअरशिप बढ़ाना चाहते हो, अगर आप ये लिखोगे इस मेरी इतनी 15 मिनट की बात में कोई एक सेंटेंस उठा के और उसको प्रोजेक्ट करोगे, आपकी मर्जी है, मैं आपको रोक नहीं सकता। लेकिन आप सबके ऊपर भी एक जिम्मेदारी है, ख़ास तौर पे कौमी अहमियत के मामलों में जिम्मेदारी है कि लोगों को मिसलीड ना करें, गलत रास्ते पे ना ले जाएं। उसके बावजूद लेना चाहते हो तो हम तो प्रेस की आज़ादी पे यकीन रखते हैं। जी, मैं अभी इसका जवाब दे दूँगा, ये भी जवाब दे दूँगा। पानी तो सबके लिए जीने मरने का मसला है, हमारे लिए भी है। हमारा सिंध आगे सूख रहा है। सखर बराज पे हमने अपनी पूरी लाइफ में, शायद कुछ दिनों बाद मर जाए, इतनी कमी हमने कभी नहीं देखी। मैं ये कह रहा हूँ, सिंध गवर्नमेंट फौरी तौर पर, जैसे जिला कौंसिल के चेयरमैन ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, 40 जगहों पे ये सर्वे कराना है ट्यूबवेल लगाने के लिए, ज़ेरे ज़मीन पानी। आप इस पर क्या कर रही है सिंध गवर्नमेंट? और दूसरा मेरा इसी के साथ सवाल ये है कि जब आपको इतनी तकालीफ जो है वो वफाक से आ रही है,
तो क्यों इस पार्टी का साथ आप छोड़ दिए? अच्छा, अब मैं कर लूँ, अजान आ रही है, अजान हो जाए, लाइव कट किया हुआ है, कर लें, आवाज़ ये अजान की आएगी तो। देखिए, सबसे पहले तो आपने 40 ट्यूबवेल बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ये सिंध हुकूमत की, आप, मैं वही कहता हूँ, देख लिया करें, सबसॉइल वाटर के पूरे सूबे की हम कर चुके हैं, जो प्रोजेक्ट कर चुके हैं, टेस्टिंग कर चुके पूरे सूबे की। हमारे यहाँ बहुत कम जगहों पे मीठा पानी है, यही प्रॉब्लम है ना, तो हम ये पहले ये कर चुके हैं। तो आपने ये कहा क्यों नहीं करते, ये हम कर चुके हैं। दूसरा, आपने कहा कि इस वफाक की हुकूमत जो आपको इतने मसले पैदा कर रही है तो आप छोड़ क्यों नहीं देते, उसका भी मैंने जवाब दिया था, दोबारा दे देता हूँ। चाहता कौन है कि हम छोड़ें, यानी हुकूमत गिरे, ये चाहता कौन है? ये चाहती ऑपोजिशन है। ये ऑपोजिशन के कहने पे हम हुकूमत छोड़ देंगे, हम तो कनाल रुकवाएंगे। अच्छा, अगर हमारी हुकूमत छोड़ने के बाद उनको फ्री हैंड मिल जाए, फिर आप कहेंगे देखा ये लोगों ने हुकूमत छोड़ दी और कनाल बन, अल्लाह ना करे कनाल बन गए। आप ये अभी कह रहे हो ना, ठीक है, ये तो आप लोग हमेशा जो चीज़ माजरत के साथ जो सूट करती हुई कहते हो, तो ये हम अपोजिशन की बात पे कि हुकूमत गिरा दो नहीं गिराएंगे। हाँ, अगर जैसे मैंने कहा, अभी भाई का सवाल था कि सीसीआई की मीटिंग क्यों नहीं हो रही, इसके बारे में मैं लिख भी चुका हूँ, कह भी चुका हूँ, बाकी सूबों ने भी कहा है। अनफॉर्चुनेटली ये PMLN ने, मुझे याद आता है 2016 के अंदर भी हमने फरवरी में, जब साल हो गया था, नवाज शरीफ साहब ने CCI का इजलास नहीं बुलाया था, उस वक्त गैस के इश्यूज थे, तब भी हमने कहा था अच्छा अब वो नहीं बुला रहे अगर इजलास, तो कनाल का प्रोजेक्ट तो रुका हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं बुलाना चाहिए, बुला के इसको ख़त्म करना चाहिए, और हम इसी पे हैं, तो हम वो जारी रखेंगे अपनी बात के, उनको बुलाना चाहिए। ये तो थोड़ा वफाकी हुकूमत को सोचना चाहिए कि सिर्फ मुराद अली शाह या सिंध हुकूमत के कहने पे इजलास ना बुलाएं। आपका आइन कहता है कि हर 90 दिन में आपने इजलास बुलाना है, तो उस पर हम और भी स्ट्रेस करेंगे ताकि बुलाया जाए। और जो आपकी बात थी कि हम ऑपोजिशन की डिमांड पे कि आप छोड़ दें, और अल्लाह ना करे, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर आज सोचे पीपल्स पार्टी छोड़ देती है हुकूमत की सपोर्ट हुकूमत में तो नहीं है, और गिर पड़ती है, कोई और जमात भी नहीं बना सकती, या तो नए इलेक्शन होंगे या कुछ और भी हो सकता है। और ये सारी चीज़ें सोचनी होती है कि बस आपके अपोजिशन, मेरी बात सुने, सिंध को तकलीफ नहीं होने देंगे, ये मैं कह चुका हूँ। ये तो बड़े साफ ना, मैं भी कह चुका हूँ, सदर जरदारी भी कह चुके हैं, बिलावल साहब भी कह चुके हैं। सिंध जो देरीना मुतालबो हुयो मोटरवे सखर खां, वो भी ॿुधाए थो, वो मोटरवे मनसूब वरी ॿीहर वापस वरितो। वापस कौन वरितो? हाँ, हमें पीपल्स पार्टी या आपके नियतों पर भी कोई शक नहीं है। बहुत शुक्रिया। सिंध के कोयले, कारूंजर, जमीनें और दरिया पंजाब और फौजियों और एस्टेब्लिशमेंट की मिल्कियत है। क्या डेल्टा तबाह हो रहा है वो पाकिस्तान की मिल्कियत नहीं है? पानी का मामला है तो वो पंजाब का। दूसरी ये बात कि पीपल्स पार्टी अभी तक आवाम को मुतमईन नहीं कर रही। गमट में कल का जो एहतजाज था, इस तरह लग रहा था जैसे रोडी में 9 या 8 मुहर्रम हो। लाखों लोग, जो करोड़ों लोग सिंध में नफरत बढ़ती जा रही है, आप डिफेंड नहीं कर रहे। दूसरा सवाल इसी में ये कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शाद की आप बरसी मना रहे हैं, और इंसाफ का भी जो है आप मुतालबा करते रहते हैं हर बरसी में। हमारे शहीद साहब की जान मोहम्मद मर, सिंध हुकूमत हमें ऐसे लग रहा है साफियों के बजाय कातलों को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आखिर जो आपने बात की, इसलिए कि वो काफ़ी क्लोज है मेरे दिल से। मुझे वो दिन याद है जब जान मोहम्मद महर को शहीद कर दिया गया था। वो रात का टाइम जब हमने कोशिश की कि उनको जल्द से जल्द कराची पहुंचाया जाए, और मुझे ये भी याद है कि मैंने अपनी चीफ मिनिस्टरशिप छोड़ते, असेंबलियाँ डिज़ोल्व हो गई थी, मैं इसलिए कि जब तक अगला चीफ मिनिस्टर ओथ नहीं लेता मैं चीफ मिनिस्टर था। आखिरी जिस हुक्मनामे पे मैंने सिग्नेचर की थी, अप्रूव किया था, जो मुझे पावर था, वो क्या किया था वो याद है। तो ये मेरा ख्याल है गलत बात है। हाँ, मैं ये मानने के लिए तैयार हूँ कि हम अभी तक कातिलों को गिरफ्तार करने में और उनको सज़ा दिलवाने में कामयाब नहीं हुए। कई वजूहात हैं, डिटेल में जाएंगे तो कभी आपको वैसे डिटेल्स मुझसे ज़्यादा पता होंगी। शिकारपुर सक्खर के कच्चे का इलाका जहाँ पे अभी भी हमारा ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन ये मैं पहले भी कहा है कि इंशाअल्लाह ताला उनके कातिलों को, शेख जान मोहम्मद के कातिलों को सज़ा दिलवा के चैन लेंगे।
दूसरे आपने बात की कि ये क्या किसका है, ये सारी चीज़ सिंध के अवाम की है, चाहे वो डेल्टा हो, चाहे सिंध की ज़मीनें हो, और आइन के मुताबिक जिसके पास वेस्ट करती है वो उसको अमानत के तौर पे सिंध के लोगों की चलाते हैं। और सिंध के लोगों ने ये जिम्मेदारी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दी, अगर किसी और को दी होती ना माफ़ी के साथ तो वो बात करते, फिर मैं देखता कि वो कितना रेजिस्ट करते इन चीज़ों को। हम सिंध के लोगों के साथ खड़े रहे हैं, खड़े रहेंगे, इस वक्त भी खड़े और आगे भी हमेशा खड़े रहेंगे। मैंने कहा था कि सिंध के लोगों का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे कर्ज है। हर इलेक्शन में हमें पीपल्स पार्टी वाले पहले से ज़्यादा, सिंध के लोग पीपल्स पार्टी को पहले से ज़्यादा वोट और सीटें देते हैं। आप समझते हैं कि हम ये चीज़ कभी भूल सकते हैं? तो ये अगेन जिस चीज़ पे हम कामयाब नहीं हुए, आपने सही कहा ना, उस प्रोपेगेंडा को, मतलब मैंने आपको अभी सारी चीज़ें बता दी कि टेक्निकली भी ये प्रोजेक्ट हम फेल करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सदर जरदारी साहब के ऊपर जो बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया था उसके भी उन्होंने पूरे कौम के सामने वजाहत कर दी, इसलिए कि वो बात ऐसी होगी। आपको मैंने डेल्टा की सूरत हाल भी बताई, आपको ये भी बताया कि कुछ बन भी नहीं रहा, उसके बाद भी अगर कन्विंस नहीं होते तो दैट मीन्स प्रोपेगेंडा करने वाले आप लोगों की जहन, आपसे मैं मेरा मुराद है, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि शायद जहन पे सवार हो गए। यार सबको कहता हूँ कि इस प्रोपेगेंडा में ना आए, हमारी अगर कहीं गलती है, जैसे जो बातें हम बता रहे हैं ना, कहते हैं कि सिंध हुकूमत को पता ही नहीं, जब अब कहते हैं कि जब एहतजाज हो रहे हैं तब सिंध हुकूमत जागी हो। भाई उस वक्त कौन सो रहा था जब हम CCI में केस हम ले गए थे जून में? तो ये चीजें सारी हमने की हैं, अनफॉर्चुनेटली कन्वे नहीं कर सकते। सिंध हुकूमत काम कर रही है, हाँ सिंध हुकूमत काम कर रही है, कहे तो ये ना, लेकिन जो इश्यूज है उस पर बात करनी है। आप गुज़श्ता रात यहाँ अफसोसनाक वाक़या पेश आया, वीगो गाड़ी ने 3 नौजवानों को कुचल दिया, एक जांबाज हो गया, 2 शदीद जख्मी हो गए। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जिला इंतजामिया सखर में यहाँ पर एयर एम्बुलेंस का इंतजाम किया। बदकिस्मती जो उनके अहल खाना ने बताया कि रात 9 बजे के बाद सखर एयरपोर्ट पर इंतजाम नहीं थे। इस पर कौन बात करेगा? कोई तो बात करना हो। वो नौजवान की बात जिंदगी खतरे में है आपकी। दूसरा सवाल इसी से ही है, सिंध हुकूमत काम कर रही है, क्या हम अभी तक कंफ्यूज है कि महकमा सेहत सिंध हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है या कोई बात नहीं कर सकता? जिला सखर रीजनल हेडक्वार्टर है, सिविल अस्पताल में 2.5 से 3 साल का अरसा गुजर गया है। MRI मशीन, CT स्कैन के हवाले से कई बातें हो चुकी हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट इस वक्त इंतजामिया को, कंपनी को जो है वो ब्लैकमेल कर रही है। वो फाइनेंस डिपार्टमेंट आपकी इस वक्त जेर निगरानी है। क्या वो बातें, आज तक ट्रामा सेंटर की बात हुई है लेकिन ये दोनों मशीनें नहीं लग रही, गरीब लोग यहाँ पर बड़ा सकते। मैं ये चीज़ चेक कर लूँगा, मुझे डायरेक्टली नहीं है इसका कि, लेकिन जो आपने रात का वाक़या बताया उसमें कुमैल हैदर शाह साहब खड़े हैं, उन्होंने 3 बजे तो मैं सो रहा था, सुबह मुझे जब पता चला, एक तो उस पर एक प्रोपेगेंडा चलाया गया, जो भी माशाल्लाह आपने सोशल मीडिया ने बस जो भी होता है ना, बस पीपल्स पार्टी को टारगेट करना है, वो किया गया। अनफॉर्चुनेटली उन 3 लोग जिनमें से एक की डेथ हो गई है और 2 बच्चे जो हैं उनकी वो उसी वक्त कुमैल हैदर शाह साहब ने कोशिश की, रात को 9 बजे के बाद उनकी, रात के 3 बजे एयरपोर्ट नहीं खुलवा सके, वो कमज़ोरी के, लेकिन ये कोई ऐसे होते पूरी दुनिया में, इवन काफ़ी दुनिया के एयरपोर्ट जब रात को बंद हो जाते हैं तो नहीं खुलते। ये इशू होता है, हमारी कोई ये इतनी फ़्लाइट्स इस पर आती नहीं कि 24 घंटे एयरपोर्ट खुला रहे। 1112 से उनकी जो एम्बुलेंसेज हैं उनके ज़रिए उनको कराची पहुंचा दिया गया है और हम दुआ करते हैं और इंशाल्लाह ताला उनको जो बेस्ट पॉसिबल इलाज है वो देंगे। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन हमारी दुआ रहेगी कि वो सेहत याब हो। आपने वो 1 सेकंड यार, वो एक सवाल हाँ मोटरवे का था भाई, सखर हैदराबाद मोटरवे का प्रोजेक्ट, यहाँ पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब सखर खुद तशरीफ़ लाए थे, आप लोग होंगे उस, आप में से कुछ होंगे या सारे होंगे उस इवेंट में, और मेरी तकरीर भी आप याद कीजिएगा। इधर से फिर हैदराबाद गए थे और हैदराबाद में ही मैंने तकरीर की थी। मेरा यही कहना था और प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त मेरी बात मान भी ली थी कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो नहीं सकता, इसको PSDP में, और मैंने कहा था CPEC के
प्रोग्राम के अंदर लाएं, जैसे आपने बाकी सारी सड़कें लाई हैं पूरे मुल्क की, इसको क्यों नहीं लाते। अनफॉर्चुनेटली वो उस वक्त के वफाकी वजीर ने कहा कि नहीं, इसको हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करेंगे। 2 साल वो रहा और फिर वो छोड़ के चले गए। अब वो फिर प्रोजेक्ट जो है स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ा। ताज़ा ये फिर मीडिया में खबर आई कि इसको रिजेक्ट कर दी। ये प्रोजेक्ट उस दिन नहीं था, एजेंडा पे एक और प्रोजेक्ट था जिसकी हमने मुखालफत की। मुखालफत हमें किसी तरक्की की स्कीम जिससे अदरवाइज हमें इफेक्ट नहीं होता, कोई मुखालफत नहीं, लेकिन इससे भी इफेक्ट ये हो रहा था कि यही पैसे 435 अरब का वो प्रोजेक्ट है, अगर इधर लगा दिए जाए तो ये पूरे मुल्क का फ़ायदा है। ये सिर्फ सक्खर के लोगों के लिए नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के लिए है। और इस पे सख्त एतराज़ किया, इस पे खतूत भी लिखे गए। उस मीटिंग में सईद गनी साहब तशरीफ़ ले गए थे और सईद साहब ने जो मुझे बताया कि उन्होंने फाइनली कहा है कि एक छोटा पोर्शन 18 किलोमीटर का, मुझे लाहौर से लेके पता नहीं कहाँ तक, वो सिर्फ उन्होंने अप्रूव किया। वो हम उस पर लगे हैं। हमारी अभी भी यही है वफाकी हुकूमत से सख्त डिमांड कि ये रोड, और ये अगेन सिर्फ मुराद अली शाह तो नहीं ट्रैवल करता है इस पे, ना आप लोग कोई रोड आते, इसमें भी पूरे पाकिस्तान ट्रैवल करता है। इसको जल्द बनाना चाहिए। आखिरी सवाल कर लें। सूरत खराब है। गुज़िश्ता रोज कश्मीर में कस्टम के 3 एहलकार अगवा हुए, उसके बाद डाकू बच्चों को अगवा कर रहे हैं, पलवा के बच्चा अगवा हुआ, फिर ब्लाकों से सिद्दीक ने कई बार कहा कि ग्रेड ऑपरेशन किया जाएगा डाकुओं के खिलाफ तलाकुमा करने के लिए। इंडस हाईवे रात को बंद होता है, लोग हो जाए, मोटरवे पे ट्रैफिक नहीं होती रात में, तो ये अमन की सुविधा कब तक? इसके साथ एक और ऐड करेंगे, ज़्यादा एक और ऐड कर रहा हूँ मैं। सक्खर सिटी में हालिया जो है स्ट्रीट क्राइम इतना बढ़ गया है तो आम शहरी वो घर से नहीं निकल सकता, उनसे बाइकें लूटमार, इनके अभी 2 दिन पहले 2 खवातीन को लूटा गया। मैंने इतने सारे सवाल हो गए अब मैं था। अगर जो है अगर वो हथियार फेंकना चाहें तो उनके लिए आप अच्छा, सबसे पहले तो जो आपने कश्मीर का बताया इस वाक़े की सख्त मज़म्मत करता हूँ। वहाँ पे एक बच्चा राजेश अगवा हुआ है काफ़ी दिनों से, और पुलिस ने, लॉ इन्फोर्समेंट ने उन डाकुओं के ख़िलाफ़ जब घेरा तंग किया और उस घेरे तंग करने में उन्होंने वो इक़दाम भी उठाए, उनके साथियों को गिरफ़्तार किया, तो रिटेलिएशन में उन्होंने ये कस्टम वाले अफसरान उठाए। और मैं कह रहा हूँ इसकी मज़म्मत भी करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला हम राजेश को भी बाजियाब कराएंगे और इनको भी छुड़वाएंगे। मसला ये है कि ये 3 ज़िले ख़ास तौर पे कश्मीर, शिकारपुर और घोटकी, इसमें लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल पिछले 2 साल से, मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगा ये पढ़ते हैं, लेकिन एक चीज़ आप देखें, जब हम हुकूमत में आए थे मार्च 2024 में, मुझे इस वक्त नंबर याद नहीं है, उससे अब तक ड्रास्टिक कमी हुई है उन लोगों की जो किडनैप थे और वो बाजियाब नहीं हुए थे। शिकारपुर में काफ़ी हालात ख़राब हो गए थे, वहाँ पे काफ़ी कामयाबियाँ हुई हैं अभी तक, ये मैं नहीं कह रहा कि अमन अमान बिल्कुल बहाल हो गया। घुटकी में भी काफ़ी हद तक कामयाबी हुई। कश्मीर हमें इस वक्त सबसे ज़्यादा मसला ट्रबलसम एरिया वो दे रहा है, उस पर हम काम कर रहे हैं। हम ग्रैंड ऑपरेशन हुए भी हैं, इसमें कुछ इश्यूज़ भी हैं। हमें जो हम हथियारों के लिए जो हमें चाहिए थे, जिसकी हम पेमेंट कर चुके हैं, वो हमें काफ़ी दिनों से हेवी इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल से नहीं मिले हैं जो उन्होंने हमें प्रोक्योर करके देने थे। ये कुछ वजूहत है जिनकी वजह से पूरी तरीके से वो ऑपरेशन नहीं हो सका, लेकिन मैं फिर आपको कहता हूँ कि कुछ बेहतरी आई है, लेकिन वो तसल्ली बख्श नहीं। मैं कहूँ कि जी कुछ बेहतरी है और सब लोग खुश हो जाए, मैं बिल्कुल ये नहीं कहना चाहता। बेहतरी आई है और इंशाल्लाह ताला इस पर काम करेंगे। सक्कर शहर की जो आपने बात की, इस पर मैं इधर ही हूँ आज, मैं मज़ीद देख लूँगा कि क्या क्या। थैंक यू जी।